अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 9 तामीरशुदा 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तालीमी सेशन का आगाज। सीएम केसीआर ने प्रगति भवन से वर्चुअल 8 अजला के कॉलेजों में किया तालीमी सेशन का इफ्तिताह। तेलंगाना हज कमेटी को बेस्ट एम्बार्केशन पॉइंट अवार्ड। आइंदा हज सीजन से अखराजात की रकम में कमी का इम्कान। चेयरमैन मोहम्मद सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीआरएस एमएलए खरीदी मामला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मामले की तहकीकात सीबीआई के हवाले करने से मुतालिक बीजेपी की दरखास्त को कर दिया मुस्तरद। तेलंगाना भवन में सीएम केसीआर की सदारत में मुनक्किद हुआ जनरल बॉडी इजलास। कहा, तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे, मौजूदा अरकान असेंबली को ही दिया जाएगा टिकट। टॉलीवुड सुपरस्टार कृष्णा का हुआ देहांत। सीएम केसीआर ने अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। कहा, सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान ज़ेर-ए-आब आने वाली ज़मीनों का मामला। निर्मल के एडिशनल कलेक्टर की गाड़ी को कर लिया गया जब्त। मुआवजे की अदायगी में ताखीर पर निर्मल कोर्ट का हुक्म। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज मंगल को 8 अजला में 9 तामीरशुदा 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तालीमी सेशन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। उन्होंने दोपहर 12 बजे प्रगति भवन से अमली तौर पर क्लासों का इफ्तिताह किया। सीएम केसीआर ने आज के दिन को तेलंगाना की तारीख का एक मुबारक दिन करार देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद रियासत के तमाम 33 अजला में एक एक सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम करना है। रियासत की तश्कील के बाद मेडिकल कॉलेजों की तादाद 5 से बढ़ाकर 17 कर दी गई है। सीएम केसीआर ने मजीद कहा कि अगले 2 सालों में हम बाकी अजला में 17 नए कॉलेज शुरू करेंगे। रियासती काबीना पहले ही इसके लिए उसूली मंजूरी दे चुकी है। इस मौके पर वज़ीर आला ने मेडिकल स्टूडेंट्स और अमले के अलावा वज़ीर सेहत हरीश राव और दीगर आला हुक्काम को मुबारकबाद दी। प्रगति भवन में मुनक़िदा इस तकरीब में रियासती वज़रा हरीश राव, विमला प्रशांत रेड्डी, अजय कुमार, एमएलसी मधुसूदन चारी और महकमे हेल्थ के दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। మరి ముఖ్యంగా మహబూబాబాద్ లాంటి గిరిజన ప్రాంతంలో, వనపర్తి లాంటి ఒక మారుమూల మహబూబాబాద్ జిల్లా ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ కళాశాలలు, వైద్య కళాశాలలు వస్తాయని చెప్పి ఎవరు కళలు కూడా ఊహించినటువంటిది కాదు. వీటన్నిటికి కారణం మన యొక్క రాష్ట్రం, సొంత రాష్ట్రం ఏర్పాటు కావడం. సొంత రాష్ట్రం ఏర్పాటు కావడమే కాదు, ఉద్యమకారులుగా పనిచేసినటువంటి బిడ్డలే తెలంగాణ పరిపాలన సారథ్యాన్ని స్వీకరించడం. అందులో ఆనాటి ప్రముఖ ఉద్యమకారుడు మిత్రుడు హరీష్ రావు ఈ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నిర్వహిస్తూ ఈ కళాశాలలు రావడానికి, ఈ కళాశాలను తీసుకురావడానికి వారు చేసినటువంటి కృషి అపురూపమైనటువంటిది. నేను వారి కృషిని మినిస్టర్ గారిని, హెల్త్ మినిస్టర్ గారిని అభినందిస్తామని మనవి చేస్తాను. వారికి పూర్తిగా సహకారం అందించినటువంటి మన రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, డైరెక్టర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ రమేష్ రెడ్డి గారికి, హెల్త్ సెక్రటరీ గారికి, ఇతర వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, ఇతర వైద్య శాఖ యొక్క సిబ్బంది అందరికీ కూడా ఈ విజయం సాధించడంలో భాగస్వాములైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీ అందరితో నేను మనవి చేసేది ఏమంటే, ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కళాశాల రావాలి అని మనం సంకల్పించుకున్నాం. అందులో భాగంగా ప్రభుత్వ కళాశాలలు, సరే ప్రైవేట్ మనకు చాలా ఉన్నాయి, కానీ ప్రభుత్వ రంగంలో వచ్చే ఈ మెడికల్ కళాశాలలు ఇప్పుడు మనకు సంఖ్య చూస్తే 17కు పెరిగింది. జిల్లాల కవరేజ్ చూస్తే 16కు వచ్చినాం. ఇంకొక 17 జిల్లాలలో మనం నూతన మెడికల్ కాలేజీలు ప్రారంభించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాబోయే రోజులలో మంత్రి గారు విశేషంగా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, ప్రభుత్వం మొత్తం అంతా దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది. ఇన్ ప్రిన్సిపల్ క్యాబినెట్ అప్రూవల్ కూడా దానికి ఇవ్వడం జరిగింది. తగిన చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. రాబోయే దీని ఫాలోఅప్లో ఈ సంవత్సరం మరియు నెక్స్ట్ ఇయర్ 2 కలిపి మిగిలిన 17 కాలేజీలు కూడా మనం ఇదే విధంగా ప్రారంభించుకుందాం. భగవంతుడు మన్నిస్తే నేనే ఆ ప్రారంభోత్సవం కూడా చేస్తా అని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. దీంతో జరిగేటువంటి ఒక గొప్ప మార్పు ఏంటంటే, మనకు గతంలో
850 సీట్లు మెడికల్ సీట్లు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలలో ఉండేవి. ఈరోజు ఆ సంఖ్య ఏకాఏకిన 2790 సీట్లకు పెరిగింది. అంటే ఎంత వైద్య విద్య కోసం ఆ విద్య చేపట్టాలి, దాన్ని నేర్చుకోవాలని అభిలాషపడేటువంటి పిల్లల కోసం ఆల్మోస్ట్ 4 రెట్లుగా దగ్గరగా క్లోజ్ టు మోర్ దాన్ 3 times, క్లోజ్ టు 4 times ఈ సీట్ల సంఖ్య పెరగడం, మన పిల్లలందరికీ అవకాశాలు రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने साल 2022-23 के लिए बेहतरीन एम्बार्केशन पॉइंट अवार्ड हासिल किया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज मंगल को अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने तेलंगाना हज कमेटी को अवार्ड हासिल होने पर तमाम हज कमेटी के अरकान व अमले के अलावा सीएम KCR का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को नई दिल्ली में सेंट्रल हज कमेटी की मीटिंग के दौरान रियासती हज कमेटियों के तमाम नुमाइंदों ने अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी से दरख्वास्त की है कि वो हज के अखराजात को कम करें, जिस पर सेंट्रल हज कमेटी ने मुस्बित जवाब दिया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि अगले सीज़न हज पर जाने वाले अफराद के लिए अखराजात में कम से कम 1 लाख रुपए की कमी हो सकती है। मोहम्मद सलीम ने मज़ीद कहा कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को भी अखराजात में कमी करने को कहा जाएगा और हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी ने सेंट्रल हज कमेटी से अपने सालाना हज कोटे को बढ़ाकर 7,000 और आंध्र प्रदेश के कोटे को 3,000 करने की दरख्वास्त की है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि अगले सीज़न हज के लिए दरख्वास्तें दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू की जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेंट्रल हज कमेटी दिसंबर में हज के लिए नए गाइडलाइंस जारी करेगी। और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला जो है एक अवार्ड नवाजा है। 20-21 साल के बाद जो है हज कमेटी, हमारी हज कमेटी तेलंगाना गवर्नमेंट को जो दिए हैं हज कमेटी को, क्योंकि इसमें मेरी एक की मेहनत नहीं है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, सबसे पहले मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हज कैम्प के टाइम पे उन्होंने पूरा मॉनिटर करके पूरी जो है पुलिस डिपार्टमेंट, GHMC कमिश्नर और हमारे CSF पूरे ऑल डिपार्टमेंट्स के सपोर्ट से जो है, और हमारे शफीउल्लाह साहब, इरफान साहब, ये सब पूरे मिलके एक टीम वर्क करके हमारा स्टाफ हज कमेटी का सब लोग जो है मेहनत करके जो है अल्लाह के करम से इसको कामयाब बनाए हज कैम्प को यहाँ पर। मगर अब के अल्लाह चाहे तो 2 लाख से ज़्यादा हाजी का कोठा ये लोग सऊदी गवर्नमेंट से बात करके लेंगे बोल के मैडम वो लोग भी बताए, वहाँ के CEO भी बताए सेंट्रल हज कमेटी के। और मैं इस पर भी जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों की ख्वाहिश रहती कि हज करना लाइफ में एक बार बोल के, और जो रेट बढ़ा दिए थे लोग, टूर ऑपरेटर्स भी है और आपके हज कमेटी से भी जो रेट बढ़ाए थे, अभी वो रेट नहीं रहेगा। हज के फॉर्म्स दिसंबर फर्स्ट वीक में चालू करेंगे, हो सकता है ये मंथ में भी हो सकते हैं एंडिंग में, मगर फर्स्ट वीक में तो अल्लाह चाहे तो 10 तारीख से पहले फॉर्म्स देना भी शुरू कर देंगे क्योंकि टाइम करीब आ रहा है। हम तो उठ के हम खुद बोले, हो सकता है उनका रिकॉर्ड भी होगा, हम उठ के बोले 1.25 लाख 1.5 लाख में हज होना गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट के खजाने में कमी नहीं है। तो बोले तो नहीं ठीक है, हम लोग जो कितना कम कर सकते करेंगे। तो मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 2.5 लाख से 3 लाख में होगा इंशाल्लाह आपके। ये बहुत बड़ा कारनामा है क्योंकि हर साल बढ़ते पैसे मगर हम कम करा के आए यहाँ पर। और हमारी गवर्नमेंट से जो सहूलत होना है हाजी को, KCR साहब की गवर्नमेंट से, वो पूरी सहूलत हम लोग हाजी को बराबर देंगे और अच्छे से अच्छा फिर हम नेक्स्ट टाइम भी जो है ना अवार्ड हम ही लेंगे इंडिया में, अल्लाह चाहे तो वैसा काम हम लोग करेंगे। आप लोगों की सपोर्ट भी होना है, मीडिया वालों। तेलंगाना हज कमेटी मेंबर व नलगोंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीजुद्दीन बशीर ने रियासती हज कमेटी को अवार्ड हासिल होने पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और मरकजी हज कमेटी का शुक्रिया अदा किया। सुल्ताना अजीजुद्दीन बशीर, कॉरपोरेटर नलगोंडा, हज कमेटी मेंबर, आज इस साल जो 2022 हुज्जाज इकराम की खिदमात को देखकर ऑल इंडिया हज कमेटी चेयरमैन और हुकूमत हिंद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अल्लाह का फजल हुआ जो खिदमात के सदर
हमारे मोहम्मद सलीम साहब की सदारत में तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन और शफीउल्लाह साहब और तमाम मेंबरान, तमाम स्टाफ, ऑल डिपार्टमेंट ने हुज्जाज इकराम की खिदमत करे हैं इंशाअल्लाह। और आइंदा भी सलीम साहब के सदारत में हुज्जाज इकराम की कोई तकलीफ़ ना हो सके ऐसा इंतज़ाम किया जाएगा। ये इंतज़ाम पूरे हिंदुस्तान में 29 रियासतों में ऑल इंडिया कमेटी के हज कमेटी साहब चेयरमैन देकर तेलंगाना के हज कमेटी को और मोहम्मद सलीम साहब के टीम को तेलंगाना की हुकूमत के और अवार्ड दिया गया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे सदर सलीम साहब को और कमेटी को, मेंबरान को, जितने हुज्जाज इकराम के लिए खिदमत करे हैं। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह आइंदा होने वाले हुज्जाज हज है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तेलंगाना रियासत से जाएं। अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए। और जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हमको इतने रियासत छोड़कर तेलंगाना की खिदमत को देखकर जो तेलंगाना के हज कमेटी चेयरमैन साहब को जो अवार्ड दिया गया हज कमेटी को, और मैं मुबारकबाद तेलंगाना की आवाम के तरफ से, मेंबरान के तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज मंगल के रोज टीआरएस एमएलए खरीदी मामले को सीबीआई के हवाले करने की बीजेपी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। ताहम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद की क़यादत में तश्कील दी गई खुसूसी टीम से तहकीक़ात जारी रखने की हिदायत दी है। अदालत ने शफाफियत के साथ तहकीक़ात की हिदायत देते हुए मशवरा दिया कि मीडिया और सियासी क़ायदीन के सामने तहकीक़ात की तफसीलात का अफशा नहीं किया जाए। तहकीक़ात की पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट इस महीने की 29 तारीख को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग में असेंबली इंतखाबात के बारे में वजाहत की। आज मंगल को तेलंगाना भवन में सीएम केसीआर की सदारत में मुनक़दा इस मीटिंग में असेंबली इंतखाबात की तैयारी और सरकारी स्कीमों को आवाम तक पहुँचाने पर तबादला ख्याल किया गया। सीएम केसीआर ने वाज़ेह किया कि असेंबली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। केसीआर ने यह भी वाज़ेह किया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में एमएलएस को तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मौजूदा अरकान असेंबली को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 10 माह दूर है, तमाम पार्टी लीडर्स और कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। याकुतपुरा मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रेन बाजार मजलिसी कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और कुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली के हमरा संतोष नगर और जफर रोड पर मुनक़दा 2 अलग-अलग तकारीब में शिरकत करते हुए नए मंजूर आसरा पेंशन कार्ड्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदार, मजलिसी, मुकामी कायदीन व कारकुनान और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे। हल्के के मंडल चारमीनार मंडल के तहत आसरा पेंशन के जो कार्ड तकसीम होने थे वो आज अलसनात फंक्शन हॉल बड़े बाज़ार में तकसीम किए गए। तकरीबन 200 से ज़ायद लोगों को वो कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। एरिया कारपोरेटर बादशाह साहब भी यहाँ पे मौजूद है, इब्तिदाई के सुदूर मुतमदिन भी है और चारमीनार मंडल ऑफिस का स्टाफ भी मौजूद है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर जैसे जैसे कार्ड्स की तकमील हो रही है बिला ताख़िर उसको फौरी तकसीम करने की हिदायत दी गई। चुनांचे आज तकसीम करें, अभी थोड़े बहुत बाकी है, इंशाल्लाह 1-2 रोज़ के बाद उसको भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 1-2-3 दिन के अंदर ये पूरे कार्ड आसरा पेंशन के मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना हुकूमत का ऐलान है। जल्द से जल्द हम तकसीम कर रहे हैं। अब यहाँ से मादना पेट ग्रैंड फेस्टिवल फंक्शन हॉल में भी कार्डों की तकसीम है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी तकसीम करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो कल परसों 2 दिन में और कुछ प्रोग्राम रखे वहाँ बाकी की तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। टॉलीवुड के सुपरस्टार कृष्णा का देहांत हो गया। उनकी 79 बरस उम्र थी। खराबी सेहत की वजह से कल उन्हें हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़ एक खानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया था। फिल्म अदाकार को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। आज सुबह की अवलीन सातों में उन्होंने आखिरी सांस ली। पसमानदगान में बेटा मशहूर अदाकार महेश बाबू और 3 दुख्तरान शामिल हैं। उनके देहांत की इत्तला के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई। कई अहम शख्सियात ने फिल्म अदाकार की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नानकरामगुड़ा में टॉलीवुड सुपरस्टार कृष्णा की रिहाइशगाह पहुंचकर कृष्णा का आखिरी दीदार करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कृष्णा के फर्जंद महेश बाबू और दीगर अहले खाना से मुलाकात की और दुख का इजहार किया। बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम केसीआर ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर महसूस करते हैं कि उन्होंने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। सीएम केसीआर ने ऐलान किया कि सुपरस्टार कृष्णा की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। మన తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో సుప్రసిద్ధ సినీ నటులు శ్రీ కృష్ణ గారు ఈరోజు మన మధ్య లేకుండా పోవటం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. వ్యక్తిగతంగా నేను చాలా గొప్ప మిత్రుని, మంచి మిత్రుని కోల్పోయాను. ఈ ఇంటికి వారి ఆతిథ్యం మేరకు చాలాసార్లు వచ్చాను. నేను విజయ నిర్మల గారు పరమతి పదించిన సందర్భంలో కూడా రావడం జరిగింది. ఆయన చాలా ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే మనిషి, అరమరికలు లేకుండా ఉండే మనిషి, మంచి విలక్షణ నటుడుగా ఉన్నారు. పార్లమెంట్ సభ్యులుగా పనిచేశారు, దేశానికి సేవ కూడా చేశారు. అల్లూరి సీతారామరాజు లాంటి గొప్ప సినిమా నేను వారికి చెప్తే చాలా నవ్వారు. కేసీఆర్ గారు మీరు కూడా సినిమాలు చూస్తారని. నేను చాలాసార్లు చూశాను. అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా అంటే చాలా సంతోషించారు. అటువంటి మంచి దేశభక్తిని ఉద్బోధించేటువంటి, స్వతంత్ర పోరాటాన్ని స్ఫురింపజేసేటువంటి గొప్ప సందేశాత్మక చిత్రం నిర్మించారు. కాబట్టి వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారి సీనియారిటీని, వారి చేసినటువంటి ఆ దేశభక్తి గురించిన ప్రయత్నాన్ని గుర్తిస్తూ అధికారికంగా ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో వారి అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఏమైనప్పటికీ ఒక మంచి మిత్రుణ్ణి కోల్పోవడం చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ఈ సందర్భంలో వారి కుటుంబ సభ్యులు, ఇప్పుడే నాకు మహేష్ బాబు మిగతా కుటుంబ సభ్యులు కలిశారు. వారికి ధైర్యం కూడా చెప్పాం. వారందరికీ కూడా ఈ దుఃఖాన్ని భరించేటువంటి ధైర్యాన్ని భగవంతుడు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటాం. निज़ाम कॉलेज हॉस्टल के मसले को हल करने का मुतालबा करते हुए ABVP कायदीन ने बशीरबाग में वाक़ वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के दफ्तर का घेराव किया। एहतजाजियों ने कॉलेज प्रिंसिपल और उस्मानिया VC पर स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुतालिका हुकाम की जानिब से गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी स्टूडेंट्स के एहतजाज पर तवज्जो नहीं देने पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने वज़ीर तालीम से मुतालबा किया कि वो फौरी इस मसले पर जवाब दें। విద్యార్థులు గత 2 వారాలుగా చెట్టు కింద కూర్చొని, రోడ్లపై కూర్చొని ధర్నాలు ఏదైతే నిరసన ప్రదర్శన చేస్తున్నా కానీ ఇప్పటి వరకు ఉస్మాన్ సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ కానీ, నిజాం కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ కానీ ఇప్పటికీ స్పందించకపోవడం సిగ్గుచేటు. సబితా ఇంద్రారెడ్డి చర్చలకని పిలిపించి విద్యార్థినులను బెదిరించడం సమంజసం కాదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. ఈ సందర్భంగా అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఒకటే డిమాండ్ చేస్తుంది. ఏదైతే నిజాం కాలేజ్ యొక్క విద్యా వాతావరణాన్ని కాపాడి తరగతులన్నీ జరిగే విధంగా చూడాలి. అదేవిధంగా హాస్టల్ యొక్క సౌకర్యాన్ని వెంటనే యూజీ విద్యార్థులకు కేటాయించాలని ABVP డిమాండ్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా పీజీ విద్యార్థులు మాకు హాస్టల్ వద్దని ప్రిన్సిపాల్కు చెప్పినా కానీ కూడా వైస్ ఛాన్సలర్ యొక్క మొండి వైఖరితోటి ఈరోజు పీజీ విద్యార్థులు ఇక్కడ ఇవ్వాలని చూస్తుండ్రు. దీనికి వెనకాల కారణం ఏంటంటే ఈరోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పీజీ విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతున్న కారణంగా నిజాం కాలేజీని, కోటి విమెన్స్ని, సైఫాబాద్ కాలేజీని అక్కడి నుంచి ఉన్నపలంగా వెళ్ళగొట్టి ఇక్కడ పీజీ విద్యార్థులకు ఇస్తే అక్కడ వచ్చే విద్యార్థులకు నేను మంచిగా హాస్టల్ సౌకర్యాన్ని ఇవ్వచ్చని వైస్ ఛాన్సలర్ ఈరోజు కుట్రల నీతిని పన్నుతున్నాడు. బిడ్డ వైస్ ఛాన్సలర్ ఖబర్దార్, నీ కుట్రల నీతిని విప్పి ఈరోజు బజార్ను పడేస్తుందని ABVP హెచ్చరిస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు విదేశాలకు వెళ్ళి నువ్వు రివార్డులు తెచ్చుకొని ఈరోజు ఠాగూర్ ఆడిటోరియంలో ప్రొఫెసర్లతోటి చప్పట్లు కొట్టించుకోకుండా కొత్త హాస్టల్ భవనాలు కట్టించి విద్యార్థులందరికీ హాస్టల్ సౌకర్యాలు కల్పించాలి. అదేవిధంగా సబితా ఇంద్రారెడ్డి వెంటనే స్పందించి విద్యా వాతావరణాన్ని కాపాడాలని ABVP డిమాండ్ చేస్తుంది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान ज़ेर आब आने वाली ज़मीनों के मुआवजे की अदायगी में ताख़ीर के मामले में निर्मल कोर्ट की हिदायत पर आज एडिशनल कलेक्टर की गाड़ी को सीज कर लिया गया। किसानों को मुआवजे की अदायगी में ताख़ीर के लिए हुक्काम को जिम्मेदार ठहराते हुए निर्मल के एडिशनल कलेक्टर की कार को मंगल को अदालती एहलकारों ने जब्त कर लिया। वाज़ेह हो के नरसापुरजी मंडल के बामनी गांव के किसान बरसों से मज़कूरा ज़मीनों के मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं। इससे क़ब्ल किसानों को 21 लाख से ज़्यादा मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया गया था। ताहम अदायगी में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार करते हुए अदालत की हिदायत पर अदालती इंतज़ामिया ने एडिशनल कलेक्टर की गाड़ी को जब्त कर लिया। హెచ్ఎంఓపిలో వాళ్ళు బామ్నీ విలేజ్లో శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కింద పోయినటువంటి భూముల దాంట్లో వీళ్ళకు 21,34,000 రూపాయల పరిహారం చెల్లించుకోవడంతో వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళినారు. దాంట్లో వాళ్ళ కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా వాళ్ళకు ఇవ్వమని చెప్పి జరిగింది. దీని లోపల ఈ వెహికల్ సీజ్కు కలెక్టర్ ఆఫీస్ సీజ్ అని చెప్పేసి దీంట్లో గౌరవనీయుల జడ్జి గారు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. దాని ప్రకారంగానే ఈ వెహికల్ టీఎస్ 1864/46 దాంట్లో టీఎస్ 1864/46 వెహికల్ నెంబర్ క్రిస్టా ఇన్నోవా వెహికల్ దీన్ని కోర్టు వారు జప్తు చేయగలుగుతున్నారు. నేను ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ 20 సంవత్సరాల కింద 1992 లోపలనే కోర్టు పోయి ఓపీ వేసారు. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఈపీ ఫైల్ అయింది. ఈపీ నెంబర్ 9/2004 దాంట్లో ఈపీ ఫైల్ అయింది. వాళ్ళు 20 మంది బాధితులు ఉన్నారు దీంట్లో. దాని ప్రకారంగా కోర్టు వారు उत्तर टीआरएस एमएलसी कई कविता ने आज मंगल को बोधन रुकन असेंबली आमिर शकील के हमरा तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बोधन में तरक्की से मुतालिक मामलात की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और वजीर सेहत को इस माह की 21 तारीख को बोधन का दौरा करते हुए बोधन के सरकारी अस्पताल में मरीजों और अटेंडर्स के साथ नाश्ता करने की दावत दी। टीआरएस एमएलसी कई कविता ने टीआरएस अरकान असेंबली डॉक्टर संजय कुमार और आमिर शकील के हमरा तेलंगाना के वजीर कोपुला ईश्वर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने निज़ामाबाद हल्के पार्लिमान में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। आदिलाबाद आरटीसी रीजनल मैनेजर सुधा प्रमिला ने मशवरा दिया है कि आरटीसी मुलाजमीन और कारकुनों को तनाव का शिकार नहीं होना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आज मंगल को आरटीसी मुलाजमीन के लिए आदिलाबाद आरटीसी के अहाते में वाक़ आरटीसी हॉस्पिटल में ग्रैंड हेल्थ चैलेंज प्रोग्राम का रीजनल मैनेजर सुधा प्रमिला ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर तिब्बी अमले ने आरटीसी मुलाजमीन और कारकुनों की तिब्बी जाँच की। इस दौरान आदिलाबाद डिपो मैनेजर के कल्पना, रिजर्वेशन इंचार्ज अहमद हुसैन, तनवीर अहमद, PO श्रीनिवास और दीगर अमला मौजूद था। టీఎస్ఆర్టీసీ స్టార్ట్ చేసిన గ్రాండ్ హెల్త్ ఛాలెంజ్ ప్రారంభించడమైనది. ఈ గ్రాండ్ హెల్త్ ఛాలెంజ్లో అందరి ఎంప్లాయీస్, ఆర్టీసీలో ఉన్న ప్రతి ఎంప్లాయీ, డ్రైవర్స్, కండక్టర్స్, మెకానిక్స్, ఆఫీస్ స్టాఫ్, ఆఫీసర్స్, సూపర్వైజర్స్ అందరికీ కూడా ఒక సమగ్రమైన హెల్త్ చెకప్ చేస్తున్నాము. దీంట్లో 17 రకాల టెస్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో దిస్ ఇన్క్లూడ్ ఈసీజీ, తర్వాత ఈఎన్టీ ఎగ్జామినేషన్, తర్వాత వాళ్ళ లంగ్ ఫంక్షనింగ్, తర్వాత జనరల్ ఎగ్జామినేషన్, కొలెస్ట్రాల్, బ్లడ్ టెస్ట్. సో మొత్తం ఒక కంప్లీట్ హెల్త్ చెకప్ చేస్తున్నాము. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ముందుగానే ఎవరికైనా ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటే వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడము. కానీ దీనికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే అందరు ఎంప్లాయీస్కి ఒక హెల్త్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు మనం చూసేది ఏంటంటే అందరికీ డయాబెటీస్, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్, అంటే జీవన శైలి సరిగ్గా లేనందుకు ఈ డిసీజెస్ వస్తున్నాయి. సో అందరు ఎంప్లాయీస్కి మేము వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి యోగా, మెడిటేషన్, మంచి ఆహారం తీసుకునే అలవాట్ల గురించి కూడా ఈ హెల్త్ క్యాంప్లో వాళ్ళకి మేము అవగాహన కల్పిస్తున్నాము. సో దీంట్లో భాగంగా అందరికీ మేము ఎంకరేజ్ చేసేది ఏంటంటే వాళ్ళ జీవన శైలిని మార్చుకుని ఈ స్ట్రెస్ని సరిగ్గా మేనేజ్ చేసుకుని ఆరోగ్యంగా జీవించాలి. तेलंगाना के जिले निर्मल में पेश आए एक खौफनाक वाक़े में चलती बस में आग लग गई। ताहम इस वाक़े में तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे। ज़िले निर्मल के
गुंजाल टोल प्लाजा के करीब ये वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक ये प्राइवेट ट्रैवल्स की बस महाराष्ट्र के नागपुर से हैदराबाद जा रही थी कि अचानक इंजन में आग लग गई। ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी रोक दी और मुसाफिरीन को उतार दिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। ये बस पूजा ट्रैवल्स की बताई गई है। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 29 मुसाफिर सवार थे। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर एक गैर मुल्की ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 12 ग्राम ममनुआ ड्रग MDMA और एक फ़ोन जब्त कर लिया। जब्त शुदा ड्रग और मोबाइल की जुमला मालियत 1,20,000 रुपये बताई गई है। DCP चक्रवर्ती गुमी ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। एनफोर्समेंट विंग और फलकनुमा पुलिस दोनों जॉइंट ऑपरेशन में एक फॉरेन नेशनल ड्रग पेडलर का गिरफ्तारी किया है। तो इसमें मोहम्मद याकूब मोहम्मद अली ये ड्रग पेडलर है। ये 31 इयर्स का है और ये ड्रग पेडलिंग करता है। इसके पास 12 ग्राम्स ऑफ MDMA और एक सेलफोन, ये दो चीज़ का बरामद हुआ। हमको इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में मालूम हुआ कि इसके पहले 2 केसेस में इन्वॉल्व है। इंफॉर्मेशन पे इसको गिरफ़्तार करें और ये दोनों अक्यूज़्ड मोहम्मद उबैद और मोहम्मद याकूब, ये दोनों का 7 ड्रग कंज्यूमर्स हम आइडेंटिफाई करें और इन लोगों को भी हम गिरफ़्तार करेंगे। तो ये पूरा फलकनुमा PS को हैंड ओवर किया है। ये पूरा ऑपरेशन में रमेश रेड्डी इंस्पेक्टर HNU, वेंकटरामुलु SI, देवेंद्र इंस्पेक्टर फलकनुमा ACP फलकनुमा, ये सब लोग जॉइंट ऑपरेशन में शामिल हुए। इनको मैं मुबारकबाद दूँ। भैंसा शहर के इलाके खान आटो नगर में इस माह की 13 तारीख को अक़लियत अक़ामती जूनियर कॉलेज में पेश आए एक मुस्लिम तालिब इल्म की मुबैना खुदकशी के मामले की तहक़ीक़ात जारी है। मरहूम तालिब इल्म मोहम्मद फरहान नवाज़ के सरपरस्तों ने इस खुदकशी के लिए 3 दीगर तुलबा पर इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने मुख्तलिफ ज़ावियों से वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ किया था। वहीं मरहूम तालिब इल्म ने भी अपने खुदकश नोट में इस बात का तज़किरा किया था। मरहूम के सरपरस्तों ने कॉलेज इंतज़ामिया पर भी लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया था। मरहूम के सरपरस्तों ने भैंसा पुलिस से इस मामले की जल्द तहक़ीक़ात मुकम्मल करते हुए इंसाफ की अपील की है। పట్టణంలోని ఒక గురుకుల కళాశాలలో ఒక విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల నుంచి వాళ్ళ బ్రదర్ నుంచి ఒక పిటిషన్ కూడా వాళ్ళు లాడ్జ్ చేయడం జరిగింది గత 2 రోజుల క్రితం ఆన్ 14వ తారీఖు రోజు. ఈ విషయం పైన కేసు నమోదు చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా ఒక 3 అబ్బాయిలు వేధించడం వల్ల చనిపోయిందని చెప్పడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి FIR రిజిస్టర్ చేసి దాని మీద తదుపరి విచారణ చేస్తాము. बोधन पुलिस ने बच्चा अगवा के एक मुअम्मे को हल कर दिया है। बोधन ACP किरण कुमार ने आज मंगल को बोधन पुलिस स्टेशन में एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि चिन्ना मामिड़ी देहात से चंद यौम क़ब्ल अगवा की गई 10 माह की बच्ची को किस तरह तफ्तीश करते हुए हैदराबाद से बाजियाब कराया गया। पुलिस ने अगवा करने वाली खातून और इस बच्ची को ख़रीदने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। इस केस को कामयाबी से हल करने में शानदार किरदार अदा करने वाले सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल को रिवॉर्ड से नवाजा गया। इस प्रेस मीट में CI बोधन प्रेम कुमार, CI रूरल श्रीनिवास राज, SI नवीन, SI पीटर व दीगर शामिल थे। ఈ నెల 12వ తారీఖు మేకల లక్ష్మి అని చెప్పి ఈమె రెసిడెంట్ ఆఫ్ చిన్నమందాగి గ్రామము వచ్చి నిన్న 10 నెలల చిన్న కూతుర్ని బోధన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్కి తీసుకొచ్చిన సందర్భంగా ఆమెను తీసుకొని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఒక 2 రోజులు అయిన తర్వాత నేను ఊరికి వెళ్ళాలనే తొందరలో నేను మాస్క్లో ఉండి అక్కడ కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుందామని చెప్పి బేబీని పెట్టి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవడానికి పోయి వచ్చేటప్పటికల్లా నా బేబీ ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దొంగిలించారని చెప్పి ఆమె చెప్పడంతో ఆమె కంప్లైంట్ని నమోదు చేసుకొని బేబీ కిడ్నాప్ కింద ఒక ఫిమేల్ బేబీ కిడ్నాప్ కింద 363 IPC కింద బోధన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రేమ్ గారు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు మొదలు పెడతారు. దర్యాప్తులో భాగంగా ఏ మసీద్ దగ్గర అయితే ఆ బేబీ మిస్ అయిందో ఆ మసీద్ దగ్గర విచారణ జరిపి అక్కడ అనుమానితులను విచారించే ప్రక్రియలో ప్లస్ అక్కడ ఒక 50 మీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి CCTV ఫుటేజ్ని
గారిని అలాగే మన బోధన్ సిబ్బందిని అలాగే బోధన్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రేమ్ సూపర్విజన్లో ఇదంతా కూడా ఈ ట్రాకింగ్ అలాగే ట్రేసింగ్ ఇదంతా జరిగిన దానికి మన నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ నాగరాజ్ ఐపీఎస్ గారు వాళ్ళకి అభినందించారు. సిబ్బందికి ఎస్ఐ నవీన్కి అలాగే సిబ్బందికి రివార్డ్స్ కూడా ఇస్తామని ప్రకటించడం జరిగింది. आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन व टीआरएस पार्टी सीनियर कायद अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी ने स्कूली तलबा और तालिबात के साथ अपनी यौम पैदाइश मनाई। ये तकरीब बेस्ट फ्रेंड्स हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुकामी बालक मंदिर हाई स्कूल में मुनक़िद की गई थी। इस मौके पर यूनुस अकबानी ने स्टूडेंट्स के साथ केक काटा और उनमें कलम व नोटबुक्स तकसीम किए। इस मौके पर असातिज़ा सुजीला बेगम, नसीम शरीफ, इमरान रसूल, वेलफेयर सोसाइटी के नुमाइंदे और दीगर मौजूद थे। नमस्कार। जैसे सर ने कहा कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, बहुत हकीकत है इसमें। आप सब बच्चों को एक बात सोचना है कि आपकी जो बचपन की जो उम्र है, आपको आपके वालिदैन स्कूल के अंदर भेजे हैं, उनका एक मकसद है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ना, पढ़ के आगे बढ़ना। और आप लोग जो ये बुनियादी तालीम के अंदर मजबूती के साथ में और पूरा फुल कंसंट्रेशन दे के अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी जो आगे की जो आने वाली मंजिलें हैं, मैट्रिक, इंटर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उसके बाद फिर डिग्री, उसके बाद पीएचडी, ये सब आपको इस सब मंजिलों में आसानी से पार करने में आपको आसानी तब होगी जबकि आपका बेसिकल एजुकेशन आपका मजबूत होगा। तो आपको 2-3 काम करना है। पहला काम तो आपको ये करना है कि कभी स्कूल को आप एब्सेंट नहीं रहना है, कोई क्लास को आप एब्सेंट नहीं रहना है। और साथ ही आपके जो स्कूल टीचर है, अगर आप स्कूल टीचर की बात मानते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने घर को जाके माँ बाप की बात मानेंगे। ये नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो उम्मीदें और जो होप्स आपके वालिदैन से, आपके टीचर से, आपके स्कूल से आपसे है, वो आप उसको मुकम्मल करना। बोले तो आप अच्छा पढ़ना, यूनिफॉर्म मेंटेन करना, DSO होमवर्क कंप्लीट करना। भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश की मुनासबत से शहर आदिलाबाद के नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल में प्रिंसिपल अतीकुर रहमान की सदारत में यौम अतफ़ाल व कौमी यौम तालीम तक़ारीब मुश्तरका तौर पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल के तलबा और तालिबात ने दिलचस्प तालीमी मुज़ाहरा पेश किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमात पर मुबनी मुख्तलिफ उन्वानात पर तक़ारीर, नज़्म और ड्रामों, फैंसी ड्रेस का शानदार मुज़ाहरा पेश किया। इस मौके पर असातिज़ा शाहिद, सूफियान, फ़हीम, सैयद इस्माइल के अलावा तलबा और तालिबात मौजूद थे। लेजेंड इंस्टीट्यूट ने आज भारतीय विद्या भवन किंगकोटी हैदराबाद में 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए एक पुरवखार तकरीब मुनक़िद की। इस तकरीब में मक्का मस्जिद खतीब मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी, वेस्ट जोन DCP जोएल डेविस, एडिशनल DCP शी टीम और भरोसा सेंटर सी सिरीशा रघुनंदन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर 10वीं और इंटरमीडिएट में बेहतरीन मुज़ाहरा करने वाले तलबा को अवार्ड और नक़द रकम से नवाजा गया। लेजेंड इंस्टीट्यूट करस्पॉन्डेंट सैयद सिराजुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। And I'm very thankful to all the parents and students. I am the correspondent Sayyid Sirajuddin, the chairman of the Legend Institute. मैं ये इंस्टीट्यूट पिछले 17 साल 17 ईयर से रन कर रहा हूँ आगापुरा चौरस्ते पे सिंडिकेट बैंक के सामने। ये मेरे मिसेस है शबाना बेगम और अल्हम्दुलिल्लाह 2021-22 बैच में मेरे पास इंस्टीट्यूट में टोटल 10th क्लास में 156 स्टूडेंट्स थे, 153 पास हुए और इंटर में अल्हम्दुलिल्लाह 100 स्टूडेंट्स में 98 पास हुए। मेरा इंस्टीट्यूट में आई प्रोवाइड कोचिंग फॉर SSC, इंटर एंड डिग्री एंड अंडर माई गार्डियनशिप total 18 staff members are working and today we are hosting this program and we are going to felicitate the students who scored the highest marks. The first prize student Sania Begum, she will be getting 10,000 rupees cash prize and this program I do every year in the presence of IPS officer और हमारे पास अच्छा एजुकेशन है, गर्ल्स सेक्शन सेपरेट है और लेजेंड इंस्टीट्यूट आगापुरा में गर्ल्स की सेफ्टी के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इट इज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। फर्दर पूरी इंक्वायरी आपको हमारी वेबसाइट www.legendinstitute.in पे अवेलेबल है। थ्रू मीडिया आई एम सेंडिंग अ मैसेज दैट
education is important, and I request all the students avoid the social media and concentrate on the studies and respect to the parents and the teachers. माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है. तालीम है तो सब कुछ है, तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है. So I wish everyone a very best of luck for their future, and I pray to Almighty Allah Ta'ala that everyone is being blessed with a great success in the future. Thank you sir. Thank you everyone. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 9 तामीरशुदा 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तालीमी सेशन का आगाज। सीएम केसीआर ने प्रगति भवन से वर्चुअल 8 अजला के कॉलेजों में किया तालीमी सेशन का इफ्तिताह। तेलंगाना हज कमेटी को बेस्ट एम्बार्केशन पॉइंट अवार्ड। आइंदा हज सीजन से अखराजात की रकम में कमी का इम्कान। चेयरमैन मोहम्मद सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीआरएस एमएलए खरीदी मामला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मामले की तहकीकात सीबीआई के हवाले करने से मुतालिक बीजेपी की दरखास्त को कर दिया मुस्तरद। तेलंगाना भवन में सीएम केसीआर की सदारत में मुनक्किद हुआ जनरल बॉडी इजलास। कहा, तेलंगाना में क़ब्ल अस वक्त इंतखाबात नहीं होंगे, मौजूदा अरकान असेंबली को ही दिया जाएगा टिकट। टॉलीवुड सुपरस्टार कृष्णा का हुआ देहांत। सीएम केसीआर ने अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। कहा, सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान ज़ेर-ए-आब आने वाली ज़मीनों का मामला। निर्मल के एडिशनल कलेक्टर की गाड़ी को कर लिया गया जब्त। मुआवजे की अदायगी में ताखीर पर निर्मल कोर्ट का हुक्म। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।